نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن اتارا کہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی ہے اور پھر اس کے مطابق وہ اعمال کرتا ہے تو الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غلو۔ غلو کیا چیز ہے، اسلام میں جائز ہے یا نہیں، کن کن چیزوں کے اندر غلو کریں تو وہ غلط ہے، اور اس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ سب سے پہلے غلو کیا چیز ہے؟ غلو کہتے ہیں دین اسلام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات کے اندر یا اللہ کے بندوں میں سے کسی کا شان، کوئی بھی چیز جس کو اس کی حد سے اوپر لے جانا، اسے غلو کہتے ہیں۔ وہ نیکی ہو، وہ ایمان ہو، وہ تقوی ہو، وہ اللہ کے نیک بندوں کا مقام ہو، کوئی بھی چیز ہو، اور ان سب کی میں مثالیں آپ کو صحیح حدیث سے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ غلو کسی بھی چیز کو اس کی جو حد مقرر کی ہے شریعت نے، اس سے کراس کر جانے کو کہتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک آیت تلاوت کی ہے، پارہ نمبر 2 سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تم کو معتدل بہترین امت بنایا ہے۔ معتدل کہتے ہیں کہ جو درمیانی ہو، نہ کم نہ حد سے کم نہ حد سے زیادہ۔ تو اس لیے
ہم ایک معتدل امت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے جو قوانین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں، نہ اس سے کم کریں نہ اس سے زائد کریں۔ اور جب ہم یہ کریں گے تو پھر یہ غلو ہوگا، جس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ معتدل کسے کہتے ہیں؟ جو بندہ شریعت محمدیہ میں غلو نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 46 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 11۔ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع دمی صوته ولا یفقہ ما یقول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں اس کی آواز کم کم آ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتی دنا فاذا هو يسأل عن الاسلام فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کانوں میں کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتا دے، روز روز ہو سکتا ہے مجھ سے نہ آیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، ایک دن میں 5 نمازیں آپ پر فرض ہیں، ایک سال میں رمضان المبارک کے 1 مہینہ روزے آپ پر فرض ہیں، زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اور باقی نفلی ہے جو تو کرے۔ لیکن فرائض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں۔ جب اس نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اسے بتایا، اسے سمجھایا، اب وہ کیا کہتا ہے؟ واللہ لا ازید علی ذلک ولا انقص، اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو کچھ آپ نے مجھے بتا دیا ہے، مجھے سکھا دیا ہے، میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نہ اس سے کم کروں گا نہ زائد کروں گا۔ اسے کہتے ہیں شریعت کو ماننا اور غلو سے بچ جانا۔ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی آپ نے مجھے شریعت دی ہے، لا ازید علی ھذا ولا انقص، اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زبان سے یہ کلمات سنے کہ میں اللہ کی قسم اس سے نہ زائد کروں گا نہ کم کروں گا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلح ان صدق، اگر اس نے سچ کہا ہے کہ یہ میری شریعت جو میں نے اس کو احکام و مسائل دے دیے ہیں، قد افلح ان صدق، اگر واقعتاً یہ اپنی بات میں سچا ہے، نہ زائد کرے گا نہ کم کرے گا، تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ کامیاب ہے۔ کیوں کامیاب ہے؟ کیا راز ہے کامیابی کا؟ لا ازید علی ھذا ولا انقص، جو اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک جو شریعت پہنچائی ہے، جو آپ کا مقام ہے، تمام انبیاء کا مقام ہے، اولیاء اللہ کا مقام ہے، قرآن کا مقام ہے، تورات و انجیل کا مقام ہے، عبادات ہے، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھوں گا، لا ازید علی ھذا ولا انقص، نہ اس کو زائد کروں گا نہ کم کروں گا، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن جس نے اس میں اضافہ کر دیا یا کمی کر دی، تو پھر اس حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غلو سے بچیں۔ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا۔ اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 30-29 ہے، اور سنن نسائی حدیث نمبر 30-57 ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم
वल-गुलुव फिद्दीन फ़इन्नमा अहलक मन कान क़बलकुम अल-गुलुव फिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वल-गुलुव, मेरी उम्मत वालों दीन में गुलुव करने से बच जाओ, बाज आ जाओ। क्या मतलब? कि जो चीज मैंने मुकर्रर कर दी है उस शरीयत में इजाफा करने से बाज आ जाओ। क्यों? फरमाया फ़इन्नमा अहलक मन कान क़बलकुम अल-गुलुव, यकीनन तुमसे पहले जितनी कौमें हिलाक हुई हैं उनको गुलूव ने हिलाक किया है, लेकिन तुम बच जाना, तुम वैसा ना करना जो पहले लोगों ने किया था। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2670 है, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 4608 है, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 3655 है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन, हलकल मुतनत्तिऊन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा ये कलिमात दोहराए। फरमाते हैं कि मेरी उम्मत वालों मुतनत्तिऊन हिलाक हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं। मुतनत्तिऊन क्या है? जो अपने अक़वाल व अफ़आल में, अपने अमाल में हद से तजावुज कर जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये काम न करो, हलकल मुतनत्तिऊन, जो ऐसा काम करने वाले थे वो तो हिलाक हो चुके। इससे साबित ये हुआ कि हमें वही शरीयत अपनाना होगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। न हम उससे जायद कर सकते हैं, न उससे कम कर सकते हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह ताला हमें इस बात की समझ अता फरमाए। अब गुलूव की सबसे पहली किस्म जो है, इसकी आगे अक़साम है और मैं ये मुकम्मल इंशाअल्लाह बयान करूंगा, आज नहीं तो आइंदा। सबसे पहली किस्म गुलूव की और सबसे बड़ी किस्म जो है, अंबिया सालिहीन अल्लाह के नेक बंदों का जो मुकाम है वो रब के साथ मिला देना, यानी अल्लाह का मुकाम अल्लाह के बंदों को दे देना। अल्लाह की जो सिफात है, अल्लाह का जो इल्म है वो बंदों को दे देना। शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया है। और गुलूव की सबसे बड़ी यही स्टेज है, ये पहला नंबर है गुलूव का। आइए मैं कुरान से आपको बताता हूँ, पारा नंबर 10 सूरह नंबर 9 सूरह तौबा आयत नंबर 30 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, यहूद व नसारा ने गुलूव किया। कैसे? वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूद कहने लगे हजरत उज़ैर अल्लाह के बंदे नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ये इनके मुंहों की बातें हैं, ये हकीकत नहीं है, ये हक और सच नहीं है, ये तो गुलूव कर रहे हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पारा नंबर 6 सूरह नंबर 5 सूरह माइदा आयत नंबर 77 के अंदर फरमाया, कुल या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्ल व अज़ल्लू कसीरन व ज़ल्लू अन सवाइस सबील। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दो, किनको? या अहलल किताब, ए अहले किताब, ए यहूद व नसारा सुन लो, ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़, अपने दीन में ना हक गुलूव ना करो, बच जाओ इससे। ये मत कहो कि हजरत उज़ैर अल्लाह के जोज है, अल्लाह के बेटे।
ये मत कहो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ला तग़लू फी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबिउ अहवाअ क़ौम, और ऐसे लोगों की इत्तिबा मत करो, ऐसी कौम की बात मत मानो जो खुद भी गुमराह हुए, रास्ते से भटक गए और बहुत ज्यादा लोगों को गुमराह किया, क्योंकि वो खुद बहुत बड़े गुमराह थे, खुद बहुत बड़े भटके हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो दीन में गुलूव करने वाले हैं उनको रास्ते से भटका हुआ कहा है। तो ये सबसे पहली किस्म है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मुकाम, उनकी शान में गुलूव करना। देखें, अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जो अल्लाह ने मुकाम दिया है, दुनिया में कोई उसको नहीं पहुंच सकता, अल्लाह के बाद उनका मुकाम है। और अल्लाह ने जो औलिया किराम को मुकाम दिया है, कोई नहीं उसको पहुंच सकता। लेकिन मेरे भाइयों, बात यह है कि हम अपने दीन में आम बंदे को जैसे वली का मुकाम नहीं दे सकते, ऐसे वली को नबी का नहीं दे सकते, ऐसे ही नबी को रब का मुकाम नहीं दे सकते। और यह गुलूब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे मना फरमाया। पारा नंबर 10 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 31 के अंदर अल्लाह ने बनी इसराइल का एक और गुलूब बयान फरमाया। क्या फरमाया? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, कि बनी इसराइल वालों ने इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, अपने पीरों और अपने मौलवियों को अरबाबन रब बना लिया था, वल मसीह इब्न मरियम, और अल्लाह के नबी मरियम के बेटे हजरत ईसा को भी रब बना लिया था। ये गुलूब है जिसकी हमें शरीयत ने इजाजत नहीं दी। हम उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते, बल्कि अल्लाह का नबी मानते हैं। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अअंत कुल्त लिन्नास इत्तखिदूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे, ईसा तूने लोगों को कहा था कि मुझे इलाह मान लो और मेरी माँ को? फरमाते हैं, अल्लाह जब तक मैं उनमें रहा मैं तो मना करता रहा, मैं तो रोकता रहा, जब मैं आ गया तो फिर तुझे पता है कि वो क्या कर रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसका मतलब ये हुआ कि गुलूब जो बनी इसराइल में था वो यही था कि उन्होंने अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के नबियों को रब बना लिया था। और सही बुखारी हदीस नंबर 3445, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 164, सही इब्न हिब्बान हदीस नंबर 6239 और सुनन दारमी हदीस नंबर 2826, ये सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं अपनी उम्मत को, जब आपने देखा कि मेरी उम्मत से पहले जो उम्म है वो क्या कुछ कर गुजरे, अपने दीन के अंदर उन्होंने कितना गुलूब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत वालों, ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, मेरा मुकाम ऐसे मत बढ़ाना जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकाम बढ़ा दिया। फ़इन्नमा अना अब्दुहु, यकीनन मैं तो अल्लाह का बंदा हूं। इसका मतलब ये है, ऐसे लग रहा है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो बात याद आई कि ईसाइयों ने अल्लाह का बेटा, अल्लाह का जुज, अल्लाह का नूर बना दिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का जुज बना दिया, अल्लाह का नूर बना दिया। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, क़ाल नबी ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ए मेरी उम्मत वालों, मेरा मुकाम, मेरा शान ऐसे न बढ़ा देना जैसे ईसाइयों ने बढ़ाया। किसका? इब्न मरियम, हजरत ईसा बिन मरियम का। फ़इन्नमा अना अब्दुहु, मैं तो यकीनन अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का नूर नहीं हूँ, कुछ और नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, तुम कहा करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। इसीलिए जब हम शहादत देते हैं तो हम पढ़ते हैं
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। और आप दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युअबद, अल्लाह मेरी कब्र पे मेला न लगाना, मेरी कब्र को सनम खाना बुत खाना न बनाना। इसीलिए उम्मत को मना फरमा दिया कि वैसे न करना जैसे ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया था, चूंकि ये गुलूब है। पारा नंबर 9 सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 188 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला मा शा अल्लाह। सुनिए, ये कुरान है। बाज भाई कहते हैं कि ऐसे कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी है। अगर ये गुस्ताखी होती तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में न बताते। चूंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहते हैं कि रब का मुकाम रब को दिया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम उनको दिया जाए। और देखें, आप अपनी जुबान से खुद फरमा रहे हैं, क्या मैंने आपको हवाला दिया पारा नंबर 9 सूरह नंबर 7 सूरह आराफ आयत नंबर 188, कुल ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको फरमा दो, ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं अपनी जान के लिए ला अमलिक मालिक नहीं हूँ, नफ़अन नफे का, वला दर्रा और न ही नुकसान का, इल्ला माशा अल्लाह मगर जो अल्लाह चाहता है वही होता है। कितना वादे है कुरान। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलूफ से बचा रहे हैं अपनी उम्मत को। फरमाते हैं इल्ला माशा अल्लाह, जो अल्लाह चाहे वही होता है। वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता होता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, मैं बहुत ज्यादा खैर जमा कर लेता, वमा मस्सनी यसू, और मुझे कोई अपनी जिंदगी 63 साल में तकलीफ परेशानी ना आती। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैंने शेबी अभी तालिब के अंदर 3 साल जेल काटी, कैद काटी, मुझे इतनी परेशानियां आई, मैंने मक्के को छोड़ा, इतना मुझे काफिरों ने तंग किया, इतना पीटा, इतना परेशान किया, किस लिए? इल्ला माशा अल्लाह, जो रब चाहते हैं वही होता है। ये किस लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें बताया? इसीलिए कि हम दीन में गुलूब न करें, हम गुलूब से बच जाएं। आगे सही बुखारी हदीस नंबर 427, सही मुस्लिम हदीस नंबर 528, सुनन नसाई हदीस नंबर 704 और सही इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 790। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेटे हैं। ये आपके आखिरी अय्याम है जब आप बीमार थे, मरीज थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी खिदमत किया करती हैं। हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। ये हबशा से आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के अंदर। इस हदीस में जिक्र है, उम्मे हबीबा फरमाती हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम थे, आप बीमार थे, लेटे हुए थे, उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल उधर हबशे में हमारे ईसाइयों के जो गिरजे हैं ना, उनके जो इबादत खाने हैं, उसमें उन्होंने तस्वीरें लगाई हुई हैं अपने नबियों की, नेक बंदों की, अल्लाह के वलियों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। उनको वो सजदा करते हैं, उनको वो देखते हैं, वो अल्लाह के नबियों को पूजते हैं, उनकी इबादत करते हैं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा काना फीहिमुर रजुलु सालिह माता बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, इज़ा काना फीहिम, जब भी उनमें ऐसा हुआ, क्या? फीहिमुर रजुलु सालिह माता, कि जब उनमें कोई अल्लाह का नेक बंदा फौत हुआ, बनौ अला क़ब्रिही मस्जिदा, तो उन्होंने उसकी कब्र पे सजदे शुरू कर दिए। वसव्वरू फीही तिल्का सुवर,
और उनकी तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत वालों, जिन्होंने नेक लोगों की कब्रों को सजदे किए, नेक लोगों की तस्वीर बनाई, अल्लाह के बंदों की तस्वीर बनाई और उनको अल्लाह का मुकाम दे दिया, जो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की सिफात है, उनके अंदर उन्होंने शुमार कर ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलाइका शिरारुल खल्क़ि इंदल्लाहि यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ पूरी इंसानियत में से सबसे ज्यादा जो बुरे लोग होंगे वो यही है। मेरे भाइयों, कितनी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमा दी है गुलूफ के बारे में कि मेरी उम्मत वाले गुलूफ ना करें, और आपने खुद मना किया। जब हजरत कैस ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरा जी चाहता है कि मैं आपको सजदा करूं, चूंकि हमारे इलाके में लोग अपने बड़ों को सजदा किया करते हैं, आप तो सबसे बड़े हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फला तफअल, ऐसा मत कर, सजदा तो रब को किया जाता है। अगर मेरी उम्मत में सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म करता कि वो अपने खामद को सजदा करे। किस कदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुलूफ से बचाया, अपने सहाबाए कराम को गुलूफ से बचने की तलकीन फरमाई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान और आपके मुकाम के अंदर गुस्ताखी है, नहीं। देखें, सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे बड़ा मुकाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। उनके बाद पूरी कायनात से बढ़कर अंबिया, औलिया, सालिहीन, मलाइका, सबसे बढ़कर अगर किसी हस्ती का मुकाम है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला तग़लू फी दीनिकुम, तुम अपने दीन में गुलू मत करना, कहीं ये ना हो कि मेरा मुकाम रब के साथ न मिला दे। और आपने सुना होगा, आज उम्मत मोहम्मदिया वाले भी ये कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो नूर मिन नूरिल्लाह है, अल्लाह के नूर से नूर है। मेरे भाइयों, फिर क्या फर्क हुआ? यहूदियों ने कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अल्लाह के बेटे हैं। हमने अगर कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के नूर से नूर है, तो फिर हमारा फर्क तो ना हुआ। और अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, इय्याकुम वल गुलूव फिद्दीन, मेरी उम्मत वालों, दीन में गुलूव करने से बच जाओ, मेरा मुकाम रब के साथ मिलाने से बच जाओ। और सब कुछ कुरान में वादे है, सब कुछ हदीस में वादे है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें गुलूव करने से मना फरमाया। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने तुमको मोतदिल उम्मत बनाया है, बेहतरीन उम्मत बनाया है। तुम्हारे पास जो दीन पहुंचा है ना, तुम उसमें कमी करोगे ना इजाफा करोगे। तो जब हम उसमें इजाफा करेंगे तो ये गुलूफ होगा, और गुलूफ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मना किया है। ये गुलूफ की पहली किस्म थी अंबिया, सालिहीन, औलिया किराम के शान और मुकाम में इजाफा करके अल्लाह की सिफात उनमें ले आना। इससे शरीयत ने हमें मना किया है और हमें यह सबक दिया है कि हम औलिया का एहतराम, उनका मुकाम वो करें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही इसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और बकिया जो इसकी अक़साम है वो फिर इंशाअल्लाह आइंदा खुतबात में होंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आखिर दवाया अल्हम्दुलिल्लाह।